Good morning all the students. Welcome you all in 9th class. Today we are just going to study chapter number 2 of geography. The name of the chapter is Physical Features of India. Before starting this lesson, we will learn what are the learning objectives of this lesson. The learning objectives of this lesson are: number 1, knowledge about the physical features of India and their origin. In this chapter, we will study the physical features of India and their origin. Number 2 is understanding the importance of each physical part. इस चैप्टर में हम सभी फिजिकल पार्ट्स को बारी बारी से उसको महत्व को समझेंगे। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। Physical features of India you must have studied in your previous classes. Here we have studied that India is divided into 5 main physical features. Number 1 is Himalayan region. Here is Himalaya. Here is the Himalaya. And number 2 is Gangetic plain, which are situated here. Number 3 is Thar desert. Number 4 is Deccan plateau or peninsular plateau. And number 5 includes coastal regions, this and islands, Andaman and Nicobar and Lakshadweep. So there are 5 physical parts of India. In this chapter we will study them deeply. Before starting the description of the physical features of India, we should know some important things. We find different type of rocks. Some are very hard like marble, while some are very soft like soapstone, which is used to making talcum powder. The color of soil varies from one place to another because soil is formed out of different type of rocks. जो soil होती है, जिस rock से वह बनती है, उस rocks के according वह अपना color प्राप्त करती है. तो different kind of rocks are found, so the soil is also different. These variations are caused due to differences in the rock formation. India is formed during different geological period, which has influenced her relief. Besides geological formation, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. तो जो ये डिफरेंस हमें दिखाई देता है रॉक्स में और सॉइल में, ये होता है क्योंकि इंडिया का निर्माण डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान हुआ है और इस पीरियड के दौरान नंबर ऑफ प्रोसेसेस हुई हैं वीदरिंग की, इरोजन की और डिपोजिशन यानी जमाव की. वीदरिंग का मतलब होता है अपक्षय यानी कि कटना, इरोजन का मतलब भी होता है अपर्दन और डिपोजिशन का मतलब होता है जमाव. चलिए आगे चलते हैं. इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना है. What is theory of plate tectonics? This theory is also known as continental drift theory. This theory was given by Alfred Wegener in 1912. According to this theory, the upper part of the earth has been formed out of 7 major and minor plates. यानी पूरा अर्थ 7 मेजर्स और माइनर प्लेट से मिलकर बना है. कुछ इसमें मेजर पार्ट्स है जबकि कुछ इसमें माइनर पार्ट भी है. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ द स्ट्रेसेस. जब इन प्लेट्स के मध्य मूवमेंट होता है तो पैदा होता है स्ट्रेस.
इन प्लेट के बीच में जो स्ट्रेस पैदा होता है उससे कॉन्टिनेंटल रॉक्स के बीच में होता है लीडिंग एंड टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज। तो इनके स्ट्रेस की वजह से रॉक्स फोल्ड होती हैं, फॉल्ट होती हैं या इनमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है। यहाँ फॉल्ट का मतलब है दरार। ओके, यू कुड अंडरस्टैंड दैट। Broadly, these plates movement are classified into 3 types। देखिए, because of the stress, जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स होती हैं उनके अंदर 3 तरह से प्रोसेसेस हो सकती हैं, 3 तरह की घटनाएं हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, we will study convergent boundary, when some plates come towards each other and form convergent boundary। जब दो बड़ी प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, लाइक दिस इज अ प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट, इफ दे कम क्लोजर देन इट फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट का मतलब है जब पास आती है, तो जब ये दोनों पास आती है तो एक बाउंड्री क्रिएट होती है इन दोनों के बीच, जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बाउंड्री। While some plates move away from each other and form divergent boundary। Divergent boundary it means जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उनके बीच में गैप पैदा होता है, इससे एक बाउंड्री बनती है। यानी पास आने पर भी और दूर जाने पर भी दोनों ही प्रोसेस में बाउंड्रीज बनती है। तो आई होप you understood what is convergent boundary or divergent boundary। In the event of two plates coming together, they may either collide, crumble or one may slide under the other। जब ये दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है या तो वो कोलाइड यानी टकरा जाती है, क्रम्बल यानी सिकुड़ जाती है और स्लाइड अंडर अदर इट मीन्स एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ सकती हैं। At that time, they may also move horizontally। The movement of these plates have changed the position and size of the continent over millions of years। Such movements have also influenced the evolution of the present land form of India। It means ये जो movement है horizontally हो सकता है, यानी कि इस तरह से हो सकता है, while it can be vertically too। The movement of these plates have changed the position and size of continent। यानी इन प्लेट्स में होने वाले मूवमेंट से कंटिनेंट्स की साइज भी बदलती रहती है, यानी वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। देखिए, इसी प्रोसेस के दौरान इंडिया में कुछ माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल we know the Himalaya is also originated like this process। हिमालय के अलावा भारत में कुछ और इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं या माउंटेन चेन्स हैं, उन्हें आपको जानना चाहिए। जरा मैप पर गौर कीजिए। ये है अरावली, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, गुरु शिखर। दिस इज विंध्याचल रेंज सिचुएटेड इन MP। This is Satpura range। This is Chota Nagpur plateau। These are Western Ghat and Eastern Ghat। This is Deccan plateau, whole is known as Deccan plateau। This is Doda Beta, it is also a famous mountain range। And this is Anai Modi, this is the last mountain situated in the south। दिस इज महेंद्रगिरी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द ओल्डेस्ट लैंडमार्क द पेनिनसुला पार्ट वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। बिफोर रीडिंग दिस यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोंडवाना लैंड। देखिए, इन एंशिएंट टाइम इट इज अ थ्योरी ऑफ जियोलॉजिस्ट दैट अर्थ पर एक बहुत ही बड़ा एक ही कंटिनेंट था जिसको कहते हैं सुपर कंटिनेंट।
है ना। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेट्स थी। तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इट वाज स्पिल्टेड, यानी इसके कुछ 2 टुकड़े हो गए। अपर पार्ट को कहते हैं हम अंगारा लैंड, वाइल सदर्न पार्ट यानी कि जो डाउन में जो पार्ट था उसे कहते हैं हम गोंडवाना, तो कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो इससे आप समझ सकते हैं, यानी वहाँ पर 2 कंटिनेंट थे स्टार्टिंग में, अंगारा और गोंडवाना। तो जो पेनिनसुला पार्ट है इंडिया का, यानी कि जो साउथ वाला पार्ट है इस तरह वाला, ये जो पार्ट है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड, इस लैंड में न केवल इंडिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ नॉर्थ अमेरिका, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड थे। यानी ये सिर्फ इतना सा पार्ट नहीं था, ये इंक्लूडेड था ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ नॉर्थ अमेरिका, ये सभी इसमें इंक्लूडेड थी बाद में, लेकिन ये टुकड़ा हुआ और ये मिल गया यूरेशियन प्लेट से। तो इसे हम बाद में एक वीडियो के द्वारा भी समझेंगे। द कन्वेंशनल करंट, यानी जो कन्वेंशनल करंट यानी कि लगातार चलने वाली जो लहरें होती हैं या प्रेशर होता है, स्पिल्ट द क्रस्ट, इसने जमीन के टुकड़े कर दिए, नंबर ऑफ पीसेस, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the गोंडवाना लैंड। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि मैप के द्वारा समझते हैं। देखिए, these are 2 parts, this is as I told you Angara land and this is Gondwana। Here you can see India has been spilted, यहाँ इंडिया अलग हो चुका है इससे, और ये इंडिया जा रहा है टुवर्ड नॉर्थ। और ये किससे मिलेगा? इस यूरेशियन प्लेट को, जिसको हम जानते हैं यूरेशियन, यानी यूरोप और एशिया जिसके अंदर इंक्लूड है। दिस इज यूरोप एंड दिस इज एशिया। तो इस प्लेट से जाकर इंडिया मिल गया। सबसे पहले इंडिया जब पहुंचा यहाँ पर, जब इंडिया पहुंचा यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में एक डाइवर्जेंट, देखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री है अभी इन दोनों के बीच में, लेकिन जब ये पास आएगा तो जब हिमालय का फॉर्मेशन होगा तो ये एक तरह से कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी। ठीक है, अभी जब इंडिया नॉर्थवर्ड जा रहा है तो जिस प्लेट से, यानी कि ये इस प्लेट से अलग हुआ तो यहाँ पर बनी डाइवर्जेंट बाउंड्री। आज यहाँ पर ओशन दिखाई देता है। तो जब ये यहाँ पर मिला, यानी जब इंडिया यहाँ तक पहुँचा, एरो इज शोन हियर, तो जब ये इंडिया यूरेशियन प्लेट के पास पहुँचा तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दिस फोल्ड ऑकर विच इज ऑल्सो नोन एज हिमालय, यहाँ पर एक फोल्ड पैदा हुआ जिसे हम हिमालय कहते हैं। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, देखो अभी जो मैंने आपको बताया उसी चीज को समझाया जा रहा है। द नॉर्थवर्ड यानी उत्तर की ओर जो ड्रिफ्ट पैदा हुआ, इससे कोलाइजन यानी कि एक टक्कर हुई द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट के साथ में। ड्यू टू दिस कोलाइजन द सेडिमेंट्री रॉक्स व्हिच वर accumulated in the gasosyncline known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya। तो इस तरह से as I told you कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इसमें से इंडिया जब आगे बढ़ा तो जब बीच वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था, ये जब इंडिया और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो ये बीच वाली जगह थी, इस जगह बन गया टेथिस ओशन। तो known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya। देखिए ये है अपनी इंडियन प्लेट और दिस इज यूरेशियन प्लेट। समझिए इसे, तो बीच का जो दोनों का गैप है, कुछ रिवर्स आती थी इस साइड से, कुछ रिवर्स आती थी इस साइड से और गिरती थी यहाँ पर। तो एलुवियल सॉइल धीरे धीरे जमा होने लगी और यह जो गैप था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। बट ड्यू टू स्ट्रेस फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से स्ट्रेस होने के कारण ये जो सॉइल थी, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉइल थी, तो ऊपर की ओर बढ़ी, जिससे बना अपना हिमालय। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड।
इसे चलते हैं आगे, समझते हैं एक वीडियो के द्वारा। आज से करीब 33 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। इनका विघटन 17 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट अर्थात एक महाखंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पेंजिया। पेंजिया के चारों तरफ सिर्फ एक महासागर था, जिसका नाम था पेंटालेसा। आज के सारे खंड इसी पेंजिया से विघटित होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक एल्फ्रेड वैगनर थे। उनका ये मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती हैं, जिसके चलते धरती पर लगातार बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं। इन्हीं बदलावों के चलते आज के महाद्वीप का निर्माण हुआ और उनके साथ ही भारत का भी निर्माण हुआ। एल्फ्रेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट्स के सरकने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के 2 भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया तथा दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। इन दोनों के डिवाइड होने के बाद बीच में जो महासागर बना, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस नाम दिया। देखिए कैसे आज के भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जिक्सॉ पजल की तरह आपस में फिट बैठते हैं। पेंजिया से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेशिया में आज के एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था। आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की भौगोलिक स्थिति अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख के हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पर टकराव हुआ। यह भी समझना आवश्यक है कि भूगर्भ में जब 2 प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट्स नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और निर्माण हुआ आज के हिमालय का। ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर टिका हुआ है और लगातार भारत की प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय से सटे पर्वतों और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी साल दर साल लगातार बढ़ रही है। इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए एल्फ्रेड ने यह भी कहा, आज के दिखने वाले सारे महाद्वीप एक दूसरे में फिट हो सकते हैं और आज किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चलो, ये तो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन एल्फ्रेड ने विस्तार में जाकर उन महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन खंडों के अवशेषों का अवलोकन किया तो पाया कि विविध अवशेष अलग अलग खंडों में एक समान ही थे। इसके साथ ही एल्फ्रेड ने अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कई प्रकार से उदाहरण दिए। यह एक अंडर सी मैप है। एक तरह के परीक्षण के रूप में हमने यह दिखाना महत्वपूर्ण समझा कि न केवल ऊपरी प्लेट एक साथ ठीक से फिट होती हैं, बल्कि समुद्र के नीचे एक तार्किक और समान पैटर्न में फैलती हैं, जिसे हम मनुष्य आसानी से समझ सकते हैं। क्या आप अंडर सी में उन रेखाओं को देख रहे हैं जो आपस में अलग होते हुए नजर आ रही हैं? है ना एक बहुत ही रोचक बात, नहीं? इन प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है।
वैसे भारत में तो कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी तो नहीं है, लेकिन हमारे इस प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी साल दर साल कुछ सेंटीमीटर सरक रही हैं। और कहा जाता है कि पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट जो विघटित हुआ था वो टेक्टोनिक प्लेट्स के लगातार सरकते रहने से फिर से एक हो जाएगा और फिर से ये एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। इसका मतलब है कि पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट पहला सुपर कॉन्टिनेंट नहीं है। ऐसे बहुत से सुपर कॉन्टिनेंट पहले बन चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स फिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको रोचक तथ्यों की जानकारी मिल सके सबसे पहले। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपको समझ में भी आया होगा कि जियोसिंक्लाइन और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज कैसे अर्थ में होने वाले चेंजेस को बताती है। चलिए नाउ वी विल स्टडी ऑल द फिजिकल फीचर्स स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज हिमालयन माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन रेंज is the Youngfold Mountains, the Himalayan uplift out of the Tethys Sea. As I told you that it is made up of the soil which was sink in the Tethys Ocean and subsidence of the northern flank of the peninsular flank का मतलब निकला हुआ हिस्सा of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin. इससे एक बहुत बड़ा बेसिन तैयार हुआ, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था नदी गिरती है और उस स्थान पर नदी गिरने से पहले कई धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा एलुवियल सॉइल को डिपोजिट करती है। इस प्रकार एक बेसिन बन जाता है। तो अंगारा लैंड का वह पार्ट जहाँ पर अपनी इंडियन प्लेट टकराई थी उस जगह पर और अपनी इंडियन प्लेट पर दोनों जगह पर थे लार्ज बेसिन। ठीक है, इन ड्यू कोर्स उसी समय दिस डिप्रेशन यानी कि जो गड्ढा था, डिप्रेशन मींस जो गड्ढा था, ग्रेजुअली गॉट फिल्ड भरने लगा विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स यानी कि नदियों की द्वारा लाई गई सेडिमेंट्री सॉइल से फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। यानी कि इंडियन प्लेट से आने वाली तथा ऊपर यूरेशियन प्लेट से आने वाली नदियों से यह स्थान भर गया। तो नाउ यू अंडरस्टूड इन द नॉर्थ एंड फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। इस तरह से इसी एलुवियल डिपॉजिट्स के द्वारा फॉर्मेशन हुआ है नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। इस लैंड पर दिखाई देता है बहुत ज़्यादा फिजिकल वेरिएशन यानी भौगोलिक संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंटिन्यूज वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर यह पेनिनसुलर प्लेट्यू एक एंशिएंट लैंड मास है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पेनिनसुलर प्लेट्यू की यदि बात करें तो वह पुराने जमाने से यहाँ पर स्थित है। तो भाई हिमालयन इज अ यंगफोल्ड माउंटेन बट पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो तो पुराने समय से था। तो इट इज द एंशिएंट लैंड मास। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक और इसे सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है बिकॉज हिमालय माउंटेन इज नॉट स्टेबल। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। हिमालय तथा नॉर्दर्न प्लेन ये अभी अभी बने हुए स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। आई होप यू आर getting all the meaning of the sentences from the viewpoint of geology. Himalayan mountain form an unstable zone. That's why Himalaya is also known as unstable zone.
That is why it is the cause of landslides and other geographical incidents are occur in Himalayan mountain range, because ये unstable है, तो इसकी जो mountain rocks है वो stable नहीं है, एक जगह पर नहीं रहती, इसलिए लैंडस्लाइड भी बहुत अधिक होता है. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valley and fast flowing rivers. यहाँ पर high peaks मिलते हैं like Mount Everest, deep valleys गहरी घाटियाँ तथा फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी यहाँ पर मिलती है. नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, और while the northern plains are formed of alluvial soil. आज की क्लास में बस इतना ही. इस चैप्टर को हम आगे 2 पार्ट में फिनिश करेंगे. इट मीन्स टोटल इसके 3 पार्ट होंगे. बट बिफोर वी फिनिश, I would like to give you some homework. Here is your homework. I have given you 4 questions. Name the different physical parts of India. What do you understand by converging or diverging? Name the important mountains and mountain ranges of India. And the 4th and last question is, mark on map काराकोरम रेंज, जैंतिया, विंध्याचल, अनायमुडी और अरावली. ठीक है, आपको इंडिया मैप को स्टडी करना है और फिजिकल मैप पर काराकोरम, जैंतिया, विंध्याचल और अनायमुडी और अरावली को मार्क करना है. आई होप यू enjoyed the video. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर अबाउट योरसेल्फ. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.